फॉर्मूला, और हो सकता है कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हो, मास डिफेक्ट. यू नो व्हाट इज मास डिफेक्ट? एनीवन? मास डिफेक्ट किसी को पता है या नहीं? Yes. So there is a mass difference between the actual nucleus, and if we sum up the masses of the individual nucleons, the protons and neutrons. That is mass effect, and that is converted into energy, and that energy is actually your binding energy. है ना, वही जो हमने फॉर्मूला लिखा है, that is nothing but the mass defect formula. बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपने लिखा है ना, वो एक्चुअली डेल्टा एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हो. डेल्टा एम इज व्हाट? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐड देम, how many neutron and proton you have, minus your actual mass. So that mass defect means the actual mass is, some of the mass is missing. That mass is actually converted into a energy form. So let us check how this model, which we have discussed earlier, that is liquid drop model, which have three terms, and does that actually fit the experimental curve of binding energy per nucleon or not? Just we will see, and we will try to check, okay, if the deviation is there, then how much deviation is there. So I just share Excel file, which I have already shared you, but with new columns. Let me just share you. So this is the Excel file. I just open it. Okay, is it visible? Yes, sir. Okay, so this is actually the actual curve, that is binding energy per nucleon in mega electron volt with respect to number of nucleon, that is A, mass number. So this is the actual curve which you are able to see. And if you just plot, let me just remove it first, and I will plot A. First, I will plot the volume term. That is, or I will plot all the three first. Okay, so the blue one, which you are able to see, that is actually your volume, sorry, the actual experimental curve from the mass defect which you have calculated. And the red one is actually the volume, which is constant for all of the nuclei. अगर volume term को ध्यान से देखोगे तो that is AVA, and when you divide by A, because you are finding per unit mass number, तो mass number से अगर divide करते हो तो जो volume term है उसमें सिर्फ constant ही रह जाएगा. It means that energy is fixed, saturated. किसी भी न्यूक्लियाई के लिए जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है that is more or less fixed. Then you see this one, which is actually the surface term divided by A, which is this one. So the surface contribution is decreasing, but in terms of binding, अगर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखते हो सिर्फ तीनों टर्म का लेकर के, सो सरफेस कंट्रीब्यूशन इज डिक्रीजिंग, बट हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं. जो एक्चुअल हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें वॉल्यूम टर्म माइनस द सरफेस टर्म, यहाँ मैंने पॉजिटिव लिया है, तो आई विल जस्ट सबट्रैक्ट. तो डिफरेंस इज देयर and the difference goes on increasing. Again, there is a saturation after certain number, means around 50, there is not a big change. ये आपको दिख रहा है ना, ये मतलब ये जो मैंने शेयर किया ग्राफ, और उसमें क्लियर हो रहा है कि क्या हम जो वर्ड्स कह रहे हैं और उसको मैच कर रहे हैं वहां पे. Are you able to
Picturize? nahi. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. The third term, which is your Coulomb terms, Coulomb energy term is this one, which is also becomes saturated after a certain time. Any saturation kind of thing is there in the nucleus. This is very sure. And we will discuss in the after the all the model we will discuss. After that, we will discuss the why this saturation is there and what are the experimental evidence of this saturation. So it increases. Why it is increasing? Obvious है, because proton number is increasing. तो जैसे जैसे आप A increase कर रहे हो, obviously the Z is increasing, the repulsion will increase. So this term has to increase. That is going to increase. The surface is why the surface is decreasing. Why the surface is decreasing? Because when you increase the number of nucleon, the volume or the surface is not increasing as much. जब आप एक न्यूक्लियन का सरफेस बना रहे हो, दैट इज अ बिग सरफेस. दो का थोड़ा सा बड़ा, तीन का बढ़ रहा है, चार का बढ़ रहा है, पांच का बढ़ रहा है. आफ्टर 50 or even 40, if you go on adding the nucleon, the surface means the sphere is not getting larger. This is what the picture is there. ठीक है, यानी ये क्लियर है. अब हमें क्या करना है, तीनों को जैसे हमने ऐड किया था, यानी दिस माइनस दिस वी विल गेट दिस. सो वी विल चेक दैट ऑल्सो. ये यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? वाई सरफेस इज डिक्रीजिंग? बिकॉज the size of the nucleus is not proportional to A. It does not increase as you increase the A. Clear? So I just remove this curve. And then I plot only the experimental or mass defect binding energy and your liquid drop model. So when we plot this one, yes, now the red one is the liquid drop model and the blue one is the mass defect calculation. Means calculated, or you can say something which is close to the experimental value. Initially it matches, there is no difference. बहुत minute difference है, कुछ nucleus के लिए difference है, but for maximum nuclei it is more or less same, है ना? तो ये fit कर रहा है, मतलब अराउंड 50 तक, मतलब 50 को अगर मैं चेक करता हूँ तो 50 से थोड़ा पहले 40 तक, यानी A की वैल्यू 40, यानी कैल्शियम, जहां से N और Z की वैल्यू सेम होती है, उसके बाद इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है N की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू Z. तो अप टू कैल्शियम इट इज फिटिंग परफेक्टली. एक आधा हमारे पास मिसिंग पॉइंट है, जैसे ये वाला एक डॉट आ रहा है, दैट इज आई थिंक इट मस्ट बी हीलियम और कार्बन. सो दैट डॉट इज कमिंग, वन मोर डॉट इज देयर, बट वो अभी विजिबल नहीं होगा. तो तीन न्यूक्लियर के लिफ्टेड है बाइंडिंग एनर्जी, मींस दे हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज ऑब्वियसली व्हिच इज made in the star and with certain combination that is only possible. That is the end product, best end product you can say. So up to 40 it matches good. So that can explain. स्टार्टिंग में हमारे पास एलिमेंट भी बहुत कम थे, बाकी जब जैसे से एक्सेलेरेटर बने तो वी डिस्कवर मोर एलिमेंट्स एंड वी हैव फ्यू बिगर एलिमेंट्स, कुछ जो एग्जिस्टिंग थे और कुछ हमने प्रोड्यूस किए, और कुछ रेडियो एक्टिव थे, तो वी हैव गॉट द डेटा. तो धीरे धीरे डेटा इंप्रूव हुआ एंड वी प्लॉट इट. व्हेन वी सी दिस कर्व देयर इज अ डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज गुड अमाउंट, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर ये 8 के आसपास आ रहा है तो ये हमें 9 ही दे रहा है, यहाँ पे भी 9 है, ये 8 से भी नीचे चला गया, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक डिफरेंस शो हो रहा है. दैट इज नॉट अ स्मॉल नंबर. अगर फ्रैक्शनल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, फ्रैक्शन मींस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो दैट कुड बी ड्यू टू एटम और सम एक्साइटेशन स्टेट, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट मींस द लिक्विड ड्रॉप मॉडल है on a classical basis is not complete. We need to improve that. तो अब इसको फाइल को हम बंद करते हैं, उसके बाद हम इसको क्वांटम मैकेनिकल एनालिसिस पे जाते हैं कि इसमें और क्या ऐसी चीजें जो इसमें इंक्लूड हो रही हैं या एक्सक्लूड हो रही हैं, और व्हाट वी कैन ऐड टू दिस. टिल दिस इज इट क्लियर एवरीथिंग? लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है, फिर उसके करेक्शंस क्या हैं, टिल हियर इज इट क्लियर टू यू एवरीथिंग, या कुछ और एक्सप्लेन करना है इसमें? Yes or no?
रिस्पॉन्स नहीं करोगे पता नहीं चलेगा ना कि मैं करवा रहा हूँ तो समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो उसी समय पे रुको कि सर ये क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दो। यस और नो। हाँ, यस सर। इज इट क्लियर? मतलब आई होप कि पहले जो आपने लिक्विड ड्रॉप पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा एनहांस हुआ है या नहीं हुआ है, ये बिल्कुल वही है। झूठ मत बोलना, बस बोलो नहीं हुआ। बोलना तो बोलो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं नहीं करूँगा कि मैंने ठीक से नहीं बताया। बट इफ इट इज एनहांस्ड देन यू जस्ट से कि थोड़ा सा ये ना इंटरेक्टिव होना जरूरी है। अगर वो इंटरेक्टिव नहीं होगा सिर्फ सुनने के लिए, और मैंने पिछले लेक्चर का नोट्स नहीं डाला है और हो सकता है आगे के नोट्स भी ना डालूं मैं, बिकॉज यू मे बी थिंकिंग कि सर तो नोट्स डाल ही देते हैं, रिकॉर्डिंग भी डल गया है, तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। तो आई वुड से कि क्लास करोगे तो आप समझोगे, अदरवाइज नहीं समझोगे। ओके, सो लेट अस assume कि आपको क्लियर है। So now we come to the fourth term, which you know very well, which is sometime called as symmetric term or sometime it is called asymmetric term. तो बुक्स में आपको सिमेट्रिक वर्ड भी मिल जाएगा या एसिमेट्रिक भी मिल जाएगा, बट मैं उसे एसिमेट्रिक सेंस में देखता हूँ। And why we will see in the asymmetric term? Because we are not going to have a symmetric thing, we are going to have an asymmetric thing, and which is actually a stable thing. न्यूक्लियस में n और z सेम नहीं है, they are not symmetrically placed in an orbit in a nucleus, they are asymmetrically placed. तो बुक में जहाँ सिमेट्रिक वर्ड है ना, तो थोड़ा सा मैं उसको अवॉइड करता हूँ। आई जस्ट कॉल इट एज एसिमेट्रिक। कुछ कुछ बुक में आपको एसिमेट्रिक भी मिल जाएगा, तो इट इज एसिमेट्रिक टर्म। एंड एसिमेट्रिक टर्म इज बिकॉज इट इज ड्यू टू द क्वांटम मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर क्लासिकल पार्टिकल्स होते तो यू हैव टू जस्ट फिट द बॉल्स। वो बॉल कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे उसका स्पिन, स्पिन से कोई मतलब ही नहीं होता, कहीं पे भी रखो इट इज सेम थिंग। बट बिकॉज दीज पार्टिकल्स हैव इंट्रिंसिक स्पिन एंड दैट स्पिन इज हाफ, एस की वैल्यू हाफ है इन सारे पार्टिकल्स के लिए, दोनों के लिए, इवन फॉर प्रोटॉन इवन फॉर न्यूट्रॉन। इट मीन्स without knowing the nucleus, we very well know about the atoms and about the electrons that they need to be placed in a perfect order. किसी को भी कहीं पे नहीं डाल सकते। And every orbit is going to accommodate certain number of fermions. These are fermions. तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि आप जब फिट करते हो, आपने न्यूक्लियस बनाया, लिक्विड ड्रॉप ये कहता है आपने न्यूक्लियस बनाना है, बबल्स डालने हैं, और वो बबल्स जो है लिक्विड के बबल हैं, और दो इनकम्प्रेसिबल हैं, यू हैव जस्ट फिट द बबल्स एंड दे आर चार्ज बबल। तो तीन कैटेगरी ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास रिड्यूस हो गई। बट लिक्विड ड्रॉप ने ये नहीं बताया कि इनकी अरेंजमेंट में भी कोई हमें ऑर्डर रखना है। द लिक्विड ड्रॉप हैज मिस्ड दिस वन, और यू कैन से क्लासिकल लिक्विड ड्रॉप हैज मिस्ड दिस वन। सो क्वांटम मैकेनिक्स केम एंड ही सेड नहीं, ये जो फिटिंग आप कर रहे हो ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें आपको अरेंजमेंट थोड़ा सा ऑर्डर में चेक करो, देखो क्या उससे क्या एनर्जी में कोई वेरिएशन आ रहा है, दैट वी हैव टू चेक। So we will take two cases. We will take a symmetric case and we will take a asymmetric case. And we will justify ourselves that symmetric case does not exist for a heavy nuclei. What exists is the asymmetric case. So what we will say that how much extra energy is required to make the system asymmetric with respect to symmetric. This is what our aim is. हमारा एम ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने इस मॉडल पे डाउट किया, उसने बोला अरेंजमेंट आपको ठीक करना है, अरेंजमेंट एक ऑर्डर में होना चाहिए, आप तो कहीं पे भी कुछ भी रखे जा रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो लिक्विड ड्रॉप सेड यस आई विल ट्राई टू पुट दैट, एंड इफ यू गेट सर्टेन एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, you have to incorporate that in the binding energy of the nucleus. Okay, and we also know in nature most of the nuclei prefer n greater than p.
This is not symmetric, this is asymmetric. So what we will do, we will try to calculate the energy of, ये भी मेरे ख्याल से आपने लास्ट टाइम किया हो या ना किया हो मुझे नहीं पता, इफ जस्ट एनीवन से कि मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला पार्ट था या नहीं था, या इसको सिर्फ आपने लिखा था या इसको समझा भी था, जस्ट एनीवन प्लीज, थोड़ा सा ये पता चलता है कि कितना डिटेल में हमें जाना चाहिए और कितना हमें समझाना चाहिए या जल्दी जल्दी करना चाहिए. एनीवन, हैव यू डन इन डिटेल और जस्ट आपने वो एक्सप्रेशन लिखा होगा कि ये हमारा सिमेट्रिक टर्म होता है? एनीवन प्लीज. सर डिटेल में नहीं किया था हमने. मतलब ये सिर्फ एक टर्म, ये टर्म होता है एंड दैट इज देयर, है ना? दिस Yes, इज व्हाट यू मस्ट हैव डन. ओके, बट समझा तो होगा कि क्यों आता है टर्म, कुछ तो समझा हुआ, बेसिक से डेरिवेशन ना किया हो. So let us assume कि there is a nucleus and we are making a nucleus in which this number till this means there are also we have n and z, but below this means up to this energy level, let us call it as E naught, and here also it will be E naught. Below this n is equal to z. Okay, and you are asked to make a new nucleus where you have to fit 2n nucleon. मैंने आपको क्या किया, एक इवन नंबर का, लेट अस टेक इवन नंबर, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है समझने में, लेट अस टेक इवन नंबर. आई कैन गिव यू ऑड नंबर आल्सो. सो इफ यू हैव अ इवन नंबर एंड आई एम आस्किंग यू कि भाई कुछ n और कुछ z तो फील्ड हैं, वो दोनों में मैंने इक्वल रखे हैं. मतलब मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, उसमें n और z मैंने एक अप टू सर्टेन लिमिट मैंने दोनों को सेम, मतलब एग्जांपल के लिए मैंने 10 न्यूट्रॉन 10 आपको वो दे दिया मैंने, या 20 दे दिया न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन दे दिया, दोनों को आपने फिट कर दिया बिल्कुल इक्वली. ऑर्बिट्स हैं, वी हैव आल्सो सेड कि ऑर्बिट्स होते हैं. तो लेट अस मेक ऑर्बिटल पिक्चर, नॉट इन डिटेल बट इन अ अंडरस्टैंडेबल वे. तो these are the orbit and you have orbit for neutron and orbit for proton. This is say this is for proton and this is for neutron. तो सभी का ऑर्बिटल अपना पिक्चर है. बिलो दिस एनर्जी लेवल ऑल आर इक्वल, बोथ आर इक्वल. तो आपका नॉर्मल इंट्यूटिव फीलिंग होगी, वो कैसे होगी, आप क्या करोगे, एक ऑर्बिट में आई आल्सो सेड कि आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना है, दे आर फर्मियंस. तो पॉली एक्सक्लूजन मींस एक वन ऑर्बिट यू विल हैव or suborbit you will have only two possibility. So you will put two protons here and two neutrons here, and if you have more then you can put here and you can put here. तो मैंने आपको इवन नंबर ही दिया है, तो मान लेते हैं हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने आपको 8 दे दिया, तो 8 की फिलिंग आप ऐसे करोगे. तो अब जो न्यू न्यूक्लियस बनेगा, दिस इज सिमेट्रिक केस एंड दिस इज एसिमेट्रिक केस. तो जो न्यू न्यूक्लियस है उसमें नीचे तो आपके एन और जेड इक्वल थे, मान लेते हैं पहले 20 थे, इधर भी 20 थे, अब आपने दोनों तरफ 4 4 डाल दिए तो 24 24. तो दैट एन इज इक्वल टू जेड. वेरी सिमेट्रिक, वेरी गुड काइंड ऑफ न्यूक्लियस. यही फीलिंग हो सकती है. आप इम्पार्शियलिटी तो नहीं करोगे ना. आपको मैं जो मार्बल्स दे रहा हूँ और उसको आपको ऐसा तो नहीं करोगे, आपको कोई न्यूट्रॉन आपका दोस्त है या प्रोटॉन आपका दोस्त है तो यू जस्ट ट्राई टू फील कि मैं इसको ज्यादा रखूंगा मैं इसको एक्स्ट्रा रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं. यू डोंट नो कि ये दोनों में कोई डिफरेंस है. तो आप दोनों जो आपके लेवल्स अवेलेबल होंगे सब में इक्वली आप डाल दोगे. ठीक है, ओके. लेट अस कम टू दिस साइड. इस साइड आप उस तरीके से डालोगे जैसा नेचर परमिट करता है. तो आप क्या करोगे कि आपके पास अगेन दिस इज ई नॉट, यहाँ तक आपके नीचे जो वैल्यू है वो n इक्वल टू जेड है. एंड नाउ यू से कि जो आपने दिया मुझे मार्बल, अब मैंने नीचे z इतना रखा हुआ है कि मेरे पास जो रिपल्शन फोर्स है थोड़ा यू विल सी अंडरस्टैंड इन अ मोर प्रैक्टिकल वे कि अब एक्स्ट्रा प्रोटॉन डालूंगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा, मुझे उसको काउंटर करने के लिए मुझे बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी बोरो करना पड़ेगा और वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा. हो सकता है बीटा डी के होकर कुछ और बन जाए. तो नाउ यू आर थिंकिंग इन अ प्रैक्टिकल एंड नॉट थिंकिंग इन अ मोर नेचुरल वे.
और नेचर में आप चेक करते हो, अरे यार यहाँ तो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन तो कम होते हैं, तो लेट अस गो इन दैट वे। तो जो मैंने आपको 8 मार्बल्स एक्स्ट्रा दिए थे जिसको आपने इक्वली प्लेस किया था, नाउ यू विल प्लेस देम ओनली ऑन द न्यूट्रॉन एरिया। जो न्यूट्रॉन का अपना ऑर्बिटल पिक्चर है, आपने वहां प्लेस कर दिया। हो सकता है एक आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 2 पेयर आपने 2 यहाँ डाल दिया और 3 यहाँ डाल दिए, मतलब 6। ये नंबर सिर्फ एक नंबर समझने के लिए, बट अल्टीमेटली वी विल हैव द जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो यू जस्ट फिट इन दिस वे, विच इज मोर प्रैक्टिकल, विच इज मोर नेचुरल। नेचर में यही एग्जिस्ट करता है। अब जो न्यूक्लियस नया आपका फॉर्म हुआ है, जिसकी एनर्जी कुछ और है, ऑब्वियसली हम एनर्जी अभी कैलकुलेट करेंगे, जो न्यूक्लियस फॉर्म है उसकी एनर्जी क्या है। नाउ n इज ग्रेटर देन z। आपको जो मैंने मार्बल दिए थे वो न्यूक्लियन थे, उसको आप दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कितने को आपको प्रोटॉन बनाना है, कितने को न्यूट्रॉन, दैट इज अप टू यू। सो नाउ यू हैव फिटेड मोर न्यूट्रॉन rather than proton. It is clear till here what we are doing. अभी हमने क्या किया, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now our aim is to calculate the energy, कि मुझे जो प्रैक्टिकल न्यूक्लियस होते हैं या जो रियल न्यूक्लियस होते हैं या नेचुरल न्यूक्लियस होते हैं, उनमें हमेशा ये फॉलो होता है, दिस इज फॉलोड, दिस इज नॉट फॉलोड। तो लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी, किसमें ज्यादा चाहिए। ऑब्वियसली इसमें ज्यादा चाहिए, मेरे को रीजन है इसके लिए, वो रीजन बाद में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि वी नीड मोर एनर्जी टू दिस अरेंजमेंट रादर देन दिस वन। बट ये करने से मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। एंड ऑब्वियसली आपको ये जो एनर्जी मिलेगी इस अरेंजमेंट को अरेंज करने के लिए, वो कहां से बोरो करोगे, यू विल बोरो फ्रॉम द वॉल्यूम टर्म। वॉल्यूम ने जो एनर्जी जनरेट की है ना, वो अल्टीमेट है, उसी से हम सारी एनर्जी को लेते रहते हैं। एक और एनर्जी लास्ट वाला जो टर्म है, दैट कैन ऐड एंड दैट कैन सब्ट्रैक्ट आल्सो, वो भी हम देखेंगे क्यों होता है। क्लियर? तो एनर्जी ये जो बोरो करेगा, इस अरेंजमेंट को असाइन करेगा, इस अरेंजमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट विल इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, इट विल कम फ्रॉम द वॉल्यूम टर्म ओनली। जो इंटरेक्शन एनर्जी जो फॉर्म हुई थी स्टार्टिंग में, पोटेंशियल एनर्जी का मैं अज्यूम किया था यू, उसी यू से वो बोरो कर रहा है। ओके, सो in both the cases we will find the final energy of the nucleus. So let us first we calculate for the symmetric case. Let me change the pen. पेन सिलेक्शन क्यों मिस हो जाता है मेरा यहाँ पे? Is it visible to you? ये प्रेजेंटिंग आपको दिख रहा है या क्या? आपको शायद मोबाइल पे, मुझे भी पेन का सिलेक्शन अलाउड है, बट इस पे नहीं आ रहा है। Just wait for a second. Okay, red one. So the energy will be E1, which is now the new energy due to symmetric arrangement. That will be the previous available energy, that is E naught. और दूसरा क्या होगा, E naught के बाद क्या लिखेंगे, प्लस if this level is of size delta energy, means normally क्या होता है 1s 2s 2p and so on, these are the orbital picture। और जैसे सब ऊपर हायरार्की में जा रहे हो तो आपको एक नंबर ऑफ एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। वहां पे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक केस में आप माइनस से स्टार्ट करते हो, जीरो पे रीच करते हो, बट हियर यू कैन हैव पॉजिटिव नंबर्स। सो यू हैव जीरो, यू हैव नेक्स्ट लेवल इज सर्टेन हाइट, किसी हाइट पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर, लेट अस से कॉल इट एज डेल्टा।
उसके बाद जो नेक्स्ट हाइट होगा अगेन ऑन डेल्टा, एंड देन डेल्टा एंड सो ऑन। बट इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो लेवल है वो डेल्टा पे है, तो सेकेंड लेवल किस पे है, 2 डेल्टा पे। इज इट क्लियर? फर्स्ट लेवल अगर डेल्टा पे है तो सेकेंड लेवल 2 डेल्टा पे है, थर्ड लेवल 3 डेल्टा पे एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है, लेवल्स तो हम ऐसे ही बनाते ना, और हमने यूनिफॉर्म लेवल बनाया है सभी में, स्पेस हमारा मोरलेस सेम। तो कितनी एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा इस लेवल को फिल करने के लिए? कितने पार्टिकल मैंने फिल किए? 4 पार्टिकल्स फिल किए, तो आई नीड 4 डेल्टा for the first level to be filled in the neutron and proton case. Then I require, when I fill on the second level, then I require 4 into 2 delta. ये एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, आप जितना हाइट में बिल्डिंग में ऊपर चढ़ते आओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती है। फर्स्ट लेवल पे जाओगे तो समथिंग mg होगा, उससे ऊपर आओगे समथिंग mgh होगा, फिर हाइट डबल होगी तो mgh 2 टाइम्स हो गया, फिर 3 टाइम्स हो गया, एंड सो ऑन। इट विल गो टिल व्हाट नंबर? किस हाइट तक जाएगा ये? आपको मैंने कितने न्यूक्लियन दिए थे, 2n, तो कितने हाइट तक हम जाएंगे? पहली हाइट तक पहुंचेंगे, दूसरी हाइट तक पहुंचेंगे, तीसरी तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे? लेट मी राइट द 3 डेल्टा आल्सो, so on till what I will reach. What is the level, which level I will reach if I have 2n number of nucleon? n delta. n delta no, फिर से करो एक बार कैलकुलेशन, ध्यान से करो। 4 मैंने लिख दिया, मतलब 4 तो देखो सभी में कॉमन है ना, 4 तो सभी में रह गया क्योंकि 4 पार्टिकल्स मुझे फिट करने हैं। टेक अ रियल एग्जांपल, मैंने आपको 10 दिए हैं, आपको मैंने कितने दिए हैं, 2 into n 10 दिए हैं, तो 5 एक में डालोगे, 5 दूसरे में डालोगे, या आप 12 ले लो, 5 में कंफ्यूजन है कि एक लेवल खाली रह जाएगा, अदर रह जाएगा, 12 ले लो। तो 12 आपने, जब मैंने आपको न्यूक्लियन दिए हैं तो हर एक लेवल पे आप 4 फिट कर रहे हो ना, आप 4 फिट कर रहे हो, यस और नो? Yes sir. Yes sir. 4 अगर फिट कर रहे हो तो इट मींस 12 का 4 क्या है, मतलब कैसे निकालोगे? ये तो मैंने एक पर्टिकुलर नंबर के लिए लिया, ऐसे ही है कि जनरल टर्म अगर लिखना हो तो इसको डिवाइड 4 कर दो ना। जितने हैं हर एक में से आपको 4 ही तो फिट करने हैं हर लेवल पे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 न्यूक्लियन आप एक लेवल पे फिट करते हो, तो कितने लेवल पहुंचोगे, डिवाइड बाय 4 कर दो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. So this will be 1 means n by 2 delta. This is the level I will reach. यानी मैं फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड सो ऑन, आई विल रीच अप टू n by 2th level. Clear? Then you need to just do the summation work, that's all. वो आपको पता ही है क्या करना है, ई नॉट ले लो, प्लस आप क्या कर सकते हो, 4 डेल्टा कॉमन ले लो, तो 1 plus 2 plus 3 plus so on till n by 2. This is what sum of n natural number. क्या होगा, n नेचुरल नंबर में nth टर्म जो हमारा n by 2 है, तो n by 2 इंटू n by 2 plus 1, यही होता है, ये क्या होता है भाई, n नेचुरल नंबर का एडिशन क्या होता है, यही होता है 1 plus 2 plus 3 so up to n। इस नंबर का एडिशन मुझे x लिख लेते हैं, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे x लिखते हैं, इसका एडिशन क्या होगा, x X plus into 1 x divided by by 2, 2. यही होगा। तो यहाँ पे भी मेरे को n by 2
इंटू n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो एंड व्हाट यू विल फाइंड द फाइनल टर्म दैट इज इक्वल टू E0 प्लस, देखो क्या आ सकता है, 4 डेल्टा बाई 2, इसको हम डिवाइड बाद में करेंगे, पहले यहाँ कर लेते हैं, दैट विल बी n² by 4 plus n by 2. So this will be E0 plus 4/2 को अंदर लेके जा सकते हो, तो ये बन जाएगा डेल्टा, 4 कैंसिल हो गया, n² by 2 प्लस n²/2, एक हमारा 2 मैंने यहाँ ले लिया था, तो 4 ये रहा, 4 डिवाइडेड बाय 2 into 2 4, so that will be n only. Clear? This is the final. This is the final which can get is solve नहीं कर सकता. Okay. Now come to this side. अब इस साइड में भी हमें सेम कैलकुलेशन करना है एंड अगेन आई विल आस्क यू अप टू विच लेवल यू विल रीच। तो ये कैलकुलेशन पहले ही करके देख लो कि किस लेवल तक आप पहुंचोगे। तो लेट अस से दिस इज E2, सिमेट्रिक के लिए हमने E1 लिया था, एसिमेट्रिक के लिए हम E2 लिख लेते हैं। E0 तो रहेगा ही जो यहाँ तक लेवल है जिसमें n = z है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमने कितने न्यूक्लियन डाले हैं, 2 डाले हैं फर्स्ट लेवल पे, तो 2 डेल्टा प्लस again we have put 2 into 2 delta plus 2 into 3 delta and plus so on till 2 into which level I will reach। अगर मेरे पास 2n कितने में फिट कर रहा हूँ एक लेवल पे, how many nucleon 2, so I will reach up to nth level, यानी nth means I will write n delta। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। E0 प्लस डेल्टा कॉमन ले लो, यानी 2 डेल्टा भी कॉमन ले सकते हो, तो अगेन यू विल फाइंड 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n। सो दिस इज वेरी सिंपल। E0 प्लस जो नेचुरल अकरिंग क्वांटिटीज होती है ना, बड़े सिंपल होते हैं कैलकुलेशन में। दिस इज 2 डेल्टा एंड अगेन इट इज n into n plus 1 divided by 2, so this will be E0 plus delta will be there, 2 तो कैंसिल हो गया, डेल्टा n² plus n। Clear? So this is what, अब you can check, you can easily check कि yes I need more energy to make this arrangement। यहाँ पे n² plus n है, यहाँ पे n²/2 plus n है। Very clear, means E2 is greater than E1, यानी नेचर थोड़ा ज्यादा एनर्जी खर्च करता है इस अरेंजमेंट को करने के लिए, लेकिन the benefit is that this arrangement help them to become stable। Clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. अब थोड़ा सा और अब हमारा मेन एम है डिफरेंस निकालना कि what is the difference, how much energy I have, how much extra energy I require to make the asymmetric arrangement। So that will be equal to delta E, which is equal to E2 minus E1। इतना ही एक्स्ट्रा में चाहिए। This number is nothing but, अगर कैलकुलेशन करते हो तो एक बार जरा कैलकुलेशन करो, E0 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका डेल्टा से ये मल्टीप्लाई करो और दूसरे डेल्टा से n मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी डेल्टा से ये मल्टीप्लाई करो, दूसरे को n से करो, n वाला टर्म तो कैंसिल होगा, वी आर लेफ्ट विद n² minus n²/2, बस ये बच गया एंड डेल्टा इज देयर, यानी n²/2 इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू मेक दिस अरेंजमेंट। अब हमें n को थोड़ा सा बेटर वे में लिखना है। n अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि n मैंने जो दिया था, मैंने आपको एक गेस नंबर दिया था कि 2n न्यूक्लियन मैं डाल रहा हूं। तो अब उस n को मुझे a z या एक्चुअल न्यूट्रॉन यानी कैपिटल N के फॉर्म में लिखना।
ठीक है, ओके। ON किसके इक्वल होगा? आपको मैं ऊपर फिगर दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से इस फिगर को देखो, दोनों फिगर को चेक करो, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? स्मॉल n की बात कर रहा हूँ, स्मॉल n जो मैंने न्यूक्लियन दिया है। चलो 2 नंबर और मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इस केस के लिए हमारे पास AN+Z होता है, और जो न्यू n जो फॉर्म हुआ है दैट इज नथिंग बट इट इज, लेट मी जस्ट राइट इट एज N1 plus 2n by 2, and Z is Z1 plus 2n by 2. है ना, यही हमने किया, दोनों को हमने इक्वल नंबर पे दे दिए। अब इस केस में आ जाते हैं। इस केस में भी ये तो नंबर सेम होगा जो फाइनल न्यूक्लियस हमारा फॉर्म हुआ है, बट मैंने इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या चेंजेस किए हैं? इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या चेंज किया है? जो न्यू n है दैट इज सम नंबर विच इज इनिशियली whatever the number you have means, उसको एक दूसरे वे में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे हम वैसे लिखते हैं। एक बार पहले आपको जो अंडरस्टैंड हो सकता है वो वाला लिखते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में नीचे हमारे पास N1, ये N1 मान लेते हैं, इसको मैंने ऊपर N1 लिख दिया ना, तो इसको हम N1 लिख लेते हैं जो हमारे E नोट तक फील्ड है। तो N1 प्लस 2n and Z will be Z1 plus 0 फॉर आवर कैलकुलेशन, हमने ये किया है। ठीक है, अब आपके पास दोनों फॉर्मूले हो गए, दोनों को ध्यान से चेक करो, दोनों में ए सेम है, यानी आपको उतने ही न्यूक्लियन मैंने दिए थे। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या चेंजेस किए, मतलब ये मैं N1 N इन सब इतने डिफरेंट नोटेशन में लिखना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ A Z और N के बीच में लिखना चाहता हूँ, यानी इन नंबर्स को मैं यूज करना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मैंने आपको नंबर्स दे दिए हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट हाउ आई कैन राइट in terms of only small n and a or whatever you can feasible number जो लिख सकते हो। एक बार जरा देखो ध्यान से दोनों तरफ। You have to compare that asymmetric how you can write with respect to symmetric। symmetric से वो asymmetric में changes क्या किए मैंने, ताकि दोनों तरफ इक्वेशन मुझे एक जैसे दिखे। थोड़ा सा टाइम लो, 2 मिनट लो, अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाता तो भी ठीक है। ए के टर्म्स में लिखना है आपको सब कुछ, एन और जेड की वैल्यू ए के टर्म्स में लिखनी है। ए और एन के टर्म्स में लिख लो, स्मॉल एन और कैपिटल ए, बस। दोनों तरफ मुझे जो इक्वेशन दिखे ना, एन इज कैपिटल एन और कैपिटल जेड का, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन, दैट शुड बी इक्वल टू समथिंग विच इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल एन, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट आई वांट। ये तो मैं आपको समझाने के लिए नीचे सारा जो डिटेल किया उसके लिए मैंने 2n और 2n सब लिखा है, बट आपको सिर्फ उसमें लिखना है। कैन आई राइट, हो जाएगा या नहीं होगा, मतलब समझने में दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब a इक्वल टू n+z है जो फाइनल न्यूक्लियस हमारा बना है। कैन आई राइट दिस एज a/2? भाई अगर मैं आपको पूछता हूँ n और z को आप n1 2n के टर्म में नहीं लिखो, सिर्फ a के टर्म में लिखो, तो सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब कि आधे आपके न्यूट्रॉन है और आधे आपके प्रोटॉन है। कैन आई राइट इन दिस वे?
यस सर। यहाँ मैंने आपको इसलिए लिखा है ये सारी चीजें कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ऐड कैसे करूँ, लेकिन ये चीजें देख करके आपको क्लियर होना चाहिए कि इट इज नथिंग बट एन की वैल्यू जो कैपिटल एन है ना और कैपिटल जेड है वो a/2 है बस। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ की कैलकुलेशन में भी देख लेते हैं कि कैपिटल एन की वैल्यू ए के टर्म्स में क्या होगी। कैन आई राइट दिस वे, टोटल न्यूक्लियर नंबर डिवाइडेड बाय 2 यानी हाफ वैल्यू प्लस एक्स, सॉरी एक्स नहीं, स्मॉल एन and z equal to a/2 minus n. Can I write this? फिर देखोगे ये इक्वेशन आपके मैच हो जाते हैं। अब जब डिफरेंस ध्यान से देखना, a/2 एंड a/2 ये हमारे क्या थे, n1 और n1 तो नहीं थे, मतलब a/2 इज हाफ ऑफ वॉट एवर द नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियन फॉर्म, यानी न्यूक्लियन कुछ 10 बन गए, 100 बन गए, 1000 बन 20 बन गए, 80 बन गए, 90 बन गए, कोई भी नंबर ले लो, हाफ ऑफ दैट यू कैलकुलेट, यानी अगर आपके न्यूक्लियस में 40 न्यूक्लियन थे तो हाफ यानी 20 में कुछ आपने ऐड किया, जो आपने न्यूट्रॉन ऐड किए, और जो आपने सब्ट्रैक्ट किया वो प्रोटॉन को। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने 4 ऐड किए थे और यहाँ पे 4 ऐड किए थे, यहाँ पे आपने क्या किए, 4 माइनस किए ना। अगर यहाँ जो मिसिंग है आपने कितने 4 माइनस किए, ये 4 नंबर क्या है, 2n का ही तो हाफ है। अगर हम कोई फिक्स नंबर ले लेते हैं तो 2n टोटल इवन नंबर है, तो मैंने n यहाँ पे डाला, n यहाँ पे डाला, तो जब मैं इस न्यूक्लियस को देख रहा हूँ तो इट इज नथिंग बट a/2 माइनस दिस नंबर दैट इज n minus n, and that n where it goes to neutron, तो a/2 plus n, a/2 minus n, a/2 plus n। जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा n डाले ना, यानी स्मॉल n जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डाले, वो किसको मैंने निकाले हैं, वो प्रोटॉन को निकाल कर यहाँ डाले ना, कितने डाले, जितने मैंने प्रोटॉन को निकाले। तो एसिमेट्रिक में यू कैन इजिली राइट इन दिस वे, किसी भी न्यूक्लियस के लिए आप लिख सकते हो, एक a/2 नंबर होगा जो हाफ होगा उसका, उस हाफ में से 2 प्रोटॉन किसी के पास न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो उतने ही आपके प्रोटॉन कम होंगे। यू कैन चेक दिस फ्रॉम एनी न्यूक्लियस डेटा। सिमेट्री केस में आपने दोनों क्या लिखना है, a/2 एंड a/2 होगा, लेकिन एसिमेट्रिक केस में a/2 प्लस n, a/2 माइनस n। ये n क्या है, यानी डिफरेंस क्या है, 2n का है। तो 2n न्यूक्लियन डालने पे आप आधे न्यूक्लियन यहाँ पे डालते हो, लेकिन यहाँ पे उतने माइनस करते हो तो वो उतना एक्स्ट्रा उसे मिल जाता है, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था कि 2n मिल गया, वो मैंने n1 के रिस्पेक्ट में लिखा था, अभी मुझे a2 के रिस्पेक्ट में लिखना है, a/2 के रिस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? अगर नहीं है तो दोबारा मैं समझाता हूँ इसको, अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इस न्यूक्लियस को जो आप देख रहे हो, जो एसिमेट्रिक अरेंजमेंट है, उसमें आपका जो माइनस हुआ है वो माइनस आपने यहाँ पे डाला है, जो अपर लेवल पे गया है। जो माइनस n प्रोटॉन आपने किए ना, वो कहाँ गए, प्लस n के पास चले। उसके नीचे तो बाकी सब a/2 है ही, उसके पहले आपका a/2 रहेगा। दिस विल मेक अ एसिमेट्रिक अरेंजमेंट, दिस विल मेक अ asymmetric arrangement. Is it clear? यस सर। सेम थे Yes, यहाँ पे sir. दोनों में। अब मुझे नीचे, अब इक्वेशन में नीचे आ जाओ। नीचे वाली इक्वेशन में आपके पास n है, ये टर्म है ना n। अब इस n को a कैपिटल N या कैपिटल Z के टर्म्स में लिखो। आपके पास ऊपर इक्वेशन है एंड हियर इज द इक्वेशन, यू हैव टू यूज एसिमेट्रिक, यानी स्मॉल n की वैल्यू आप कैपिटल A, कैपिटल N या कैपिटल Z के टर्म में बताओ कि n की वैल्यू है क्या, स्मॉल n की वैल्यू क्या है, जो न्यूक्लियर नंबर यानी प्रोटॉन नंबर ले लो या मास नंबर ले लो या न्यूट्रॉन नंबर ले लो, इन तीनों के फॉर्म में लिखना है आपको। तो वो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन है ना, एक्स्ट्रा जो आपने ऐड किए हैं, उसकी वैल्यू इन तीनों के रिस्पेक्ट में क्या होती है, जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n यूजिंग दीज इक्वेशंस। यहाँ जो इक्वेशन दोनों लिखे ना, तो n की वैल्यू बताओ मुझे।
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और n की वैल्यू बताओ। ऐड मत करना, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्मॉल n की वैल्यू पता नहीं चलेगी आपको। इनको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करके चेक करो क्या बनता है। n minus z equal to 2n. n minus z divided by 2। 2। Yes sir. इट मींस जो एक्सेस न्यूक्लियन आपने डाले थे, 2n डाले थे, उसकी हाफ वैल्यू आपकी n माइनस जेड बाई 2 है। ठीक है, डबल वैल्यू n माइनस जेड है, सिंपल है। कितने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, दैट इज नथिंग बट n माइनस जेड। और अगर ऊपर कैलकुलेशन देखोगे तो हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज 2 टाइम्स, तो उसे हाफ करना है, सिंपल। ये सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर तो थोड़ा सा और फास्ट अगर सोचोगे कि ये तो स्मॉल n की वैल्यू एक्चुअली सर कुछ नहीं है, n माइनस जेड बाई 2 है। कितने एक्स्ट्रा न्यूक्लियन डाले, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, वही आपका n है। मैंने लिखा 2n था क्योंकि इवन नंबर से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, अदरवाइज समझाने में भी इजी हो जाता है। बट जो स्मॉल n है ना, दैट इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ दैट। डिफरेंस का हाफ है ये स्मॉल n। अब क्लियर हो गया होगा देखते ही इक्वेशन की, यस ये तो यही है, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का हाफ है। तो नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द एनर्जी इक्वेशन, बिकॉज स्मॉल n हमें जरूरत नहीं है, स्मॉल n इज अ जनरल टर्म, हमें न्यूट्रॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर या a के नंबर में लिखना है सब कुछ। तो नाउ दिस इज a डेल्टा बाय 2 n माइनस z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 आया था ना तो 4 हो गया। तो दिस इज डेल्टा बाय 8 n माइनस z होल स्क्वायर। ये टर्म आता है एसिमेट्रिक में, n माइनस z होल स्क्वायर, ये टर्म आता है एसिमेट्रिक में या नहीं? एसिमेट्रिक आपने बोला था ना कि आपने पढ़ा हुआ है, तो उस फॉर्मूले Yes में sir. n माइनस z आता है, आता है। Yes sir. ओके, हो सकता है a के टर्म्स में लिखा हो, तो आप इसको a के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज n प्लस z इज a एंड n माइनस z इज दिस इज द टर्म विच इज रिक्वायर्ड, तो आप इसको लिख सकते हो a के टर्म्स में भी। तो कई बार रिप्लेस कर देते हैं तो वो a माइनस 2z या समथिंग आ जाता है। ओके, लेकिन एक 1/a का भी टर्म आता है, वो कहाँ से आ रहा है? उसमें 1/a का भी टर्म होता है ना, इनवर्स ऑफ a, so that now we have to calculate. Now what about डेल्टा? डेल्टा भी हमारा एक जनरल टर्म है, इसको भी हमें रिप्लेस करना है a n या z के टर्म्स में, क्योंकि हमारा बाइंडिंग एनर्जी में कहीं डेल्टा लिखा नहीं होता है, या तो a होता है या z होता है या n होता है, या तो कोई कांस्टेंट होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। इट मींस डेल्टा मुझे पता होना चाहिए न्यूक्लियस का कि डेल्टा है कितना है, एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस होते क्या है। ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, बट हम लिख सकते हैं कि दैट विल बी नथिंग बट इट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय ए। क्वेश्चन तुम्हें पूछना चाहिए कि क्यों, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्यों, व्हाई इट विल बी दिस वन। हैव रीजंस, ये रीजंस नहीं है तो मैं बताऊं फिर? बता दो। बता दो। आप जब लेवल्स फॉर्म करते हो ना, आपके लेवल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है एक्चुअली कुछ नहीं, ई टोटल एक वैल्यू है जो फाइनल वैल्यू है, जिसको नॉर्मली इलेक्ट्रॉन केस में हम उसे 0 मानते हैं, न्यूक्लियस केस में पॉजिटिव मान रहे हैं। ई टोटल इज द वैल्यू, क्लियर? एंड विद इन दैट ई टोटल यू हैव टू फिट द न्यूक्लियन। अब मैंने ई टोटल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, जो टोटल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, अगर आप देखोगे तो दैट इज मोर और लेस सेम फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस। But what happens within that E total? Sometime you have to fill 10 nucleon, sometime you have to fill 20 nucleon, sometime you have to fill 50 nucleon, sometime you have to fill 200 nucleons. यानी E total के अंदर ही आपको
क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी इज गिविंग अ सैचुरेशन काइंड ऑफ थिंग, यानी वो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है, वो सैचुरेट होनी शुरू हो जाती है। तो एक्सेस एनर्जी कहीं से नहीं आएगी कि डेल्टा आपको सेम रखना है। डेल्टा सेम होने का मतलब कि एनर्जी न्यूक्लियस की बढ़ती चली आनी चाहिए जैसे हम न्यूक्लियन बढ़ाएं, बट दैट इज नॉट द केस। इट मीन्स एक ये नंबर मोर और लेस फिक्स्ड है, या एक रेंज ऑफ नंबर है वो फिक्स्ड है। दिस इज अ बिगर, आई विल से ब्रॉडर बैंड काइंड ऑफ थिंग, and below that I have to make the levels as per your nucleon। कितने न्यूक्लियन है उसके लिए लेवल। अगर मेरे पास 2 न्यूक्लियन है, या मेरे पास लेट अस से कि मेरे पास 4, यहाँ पे हम 12 डाल सकते हैं, तो मेरे पास 12 न्यूक्लियन है, तो आई विल मेक दिस काइंड ऑफ थिंग, यानी 2 मैंने प्रोटॉन और 2 मैंने न्यूट्रॉन डाल दिए, यहाँ पे भी डाल दिए, यानी 4 यहाँ 4 यहाँ, मेरे पास इतने बन गए। यानी जब मैं within E total I am putting 12 nucleon, then I need this kind of gap, ये गैप चाहिए मुझे, या 12 नहीं और डाल लो 16 कर लो, दैट विल बी बेटर। दिस वन, लेट अस टेक द अपर लेवल आल्सो। तो फॉर 16 आई नीड दिस काइंड ऑफ गैप, उसका डेल्टा ये होगा। अगर मैंने इसी ई टोटल में मुझे 100 डालने हैं, तो व्हाट विल हैपन, आई हैव टू मेक मोर लेवल्स विद इन द अवेलेबल स्पेस व्हिच इज फिक्स्ड फॉर द न्यूक्लियस। 2 से लेकर के 6 फर्मी के बीच में ये साइज, उससे ज्यादा साइज नहीं, 7-8 फर्मी बहुत मुश्किल से ही होता है। तो विद इन दैट साइज आई हैव टू accommodate more nucleon, means I have to make these levels very close to each other. It means delta will decrease for those nucleon when you have more number of nucleon. So those nucleus, the delta is going to decrease. यानी पहले डेल्टा 1 था, अब डेल्टा 2 है। डेल्टा 2 ज्यादा न्यूक्लियस के लिए, ज्यादा न्यूक्लियन के लिए क्या होगा, इट विल डिक्रीज, मींस डेल्टा 2 विल बी लेस देन डेल्टा 1। इट मींस डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ न्यूक्लियन फॉर अ न्यूक्लियस। जितने ज्यादा न्यूक्लियन उतने ही लेवल आपके ज्यादा होंगे और आपको स्क्वीज आउट हो जाएगा। स्पेस अवेलेबिलिटी इज लेसर, it is fixed. In that space we have to make the levels, and that level will become very close when you have more number of nucleons in a nucleus. So delta is inversely proportional to A. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes. So delta E, now we can write finally that E total, which is more or less same for most of the nucleon, nucleus, E total divided by A, and there is 8 also, यहाँ पे check करो 8 है, n minus z whole square. It means now I can say symmetric or asymmetric, whatever you can say, asymmetric or symmetric, n minus z whole square divided by A. E total और 8 मिलकर के आपके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएंगे। तो डेल्टा E, यानी this much of extra energy I have to put, I have to use, I have to invest to make this symmetric asymmetric, which nature prefer, and nucleus become stable. तो हमें Z कम रखना है, N ज्यादा रखना है। N अगर ज्यादा रखते हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, because you have to put the neutron to the higher level. आपके जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन है ना, उसको हायर लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग के 2 पार्टीशन है और दोनों तरफ बहुत सारे कमरे बने हुए हैं लेवल वाइज। तो बिल्डिंग विल बिकम स्टेबल इफ यू take some of the people from lower level, which is for the proton, to the higher level of the neutron, because नीचे वाला तो फील्ड है और ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। You have to go upper in terms of potential energy. It means you have to invest energy. So this is the term which is asymmetric, fourth term in the binding energy. Now let us quickly discuss the fifth term, because its derivation is more complicated, that you will learn if you take nuclear physics in your second year specialization of masters. If you go there, so there you will do the calculation of fifth term, which is pairing term. But we know something about the pairing term. This evidence is that whenever you have a paired nuclei, means in which you have N and Z are forming a pair,
that nuclei is more stable than its neighboring one, जिसमें कि unpaired हो, तो it is more stable. यानी nature prefer the pairing. नेचर में पेयरिंग इज प्रेफर्ड. जब भी मैं स्टेबिलिटी ज्यादा मींस बाइंडिंग एनर्जी इज मोर. बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तभी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना. इस पे तो एग्री होते हो कि अगर कोई न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है. इस स्टेटमेंट पे तो एग्री है हम या नहीं है? यस. है ना. और जब भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो उस न्यूक्लियस का मास कम है, और जब भी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो उस न्यूक्लियस का मास ज्यादा है. ये भी हमें एग्री होना चाहिए. इफ यू लुक एट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू Z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस N टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस दिस. माइनस नंबर अगर ज्यादा हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगा, माइनस माइनस वाला नंबर कम होता है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा. दिस इज आल्सो वी आर एग्री. So from the experimental evidence and natural evidence also, that most of the nuclei which are stable, जिसको हम कहते हैं बीटा स्टेबल न्यूक्लियाई, यानी बीटा डीके भी नहीं करते हो, दे आर स्टेबल. तो दैट इज मोस्टली आर इवन इवन कॉन्फ़िगरेशन, यानी Z और N उसमें इवन नंबर के हैं. और नेचर में दे आर रफली 165. तो आप अगर सारे स्टेबल आइसोटोप देखते हो जो स्टेबल हैं, ये 107 से ज्यादा है. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट द आइसोटोप आल्सो. तो 165 होते नहीं आपके पीरियोडिक टेबल में. आपके पीरियोडिक टेबल में 107 या 112 या 120 तक ही आप जाओगे, बट दिस इज 165. सो दे आर एक्चुअली आइसोटोप्स आल्सो. तो जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, उसमें वो आइसोटोप स्टेबल हैं which have even configuration. Clear? Then the next category, which is odd A. Odd A. Odd A का केस क्या है? आपका even Z and odd N, और odd Z and even N. दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों नंबर आपको ऑड नंबर ही देगा. दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट ऑड नंबर ओनली. They are around 105 in nature. They are also good number. 165 वो वाले हैं, 105 ये वाले हैं, तो 2 समथिंग हो गए हमारे पास मास नंबर. ओके, इतने न्यूक्लियाई स्टेबल है, यानी ये 165 ये कम है बट फिर भी स्टेबल है. यानी ऑड ए भी नेचर में एग्जिस्ट करता है अच्छे से, गुड अमाउंट में. बट व्हेन यू लुक एट द ऑड केस, ऑड क्या हो गया? N भी ऑड है और Z भी ऑड है. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अ गुड एग्जांपल which is stable also. तो नाइट्रोजन एक ऐसा है जिसमें कि आपका 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, दोनों ही ऑड नंबर है. नेट वैल्यू एक इवन नंबर आ रही है, n प्लस जेड को करोगे यानी a की वैल्यू आपकी इवन नंबर आ रहा है, बट बोथ इंडिविजुअली दे आर ऑड नंबर. They are only around 5 to 6. I don't exactly remember the figure, but 5 to 6. They are stable isotopes. बहुत ही कम है, यानी नेचर इसको प्रेफर नहीं कर रहा है. नेचर में ये कम होने का रीजन है, नेचर डज नॉट प्रेफर दिस वन. इसको ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है नेचर, यानी ये प्रेफर करना चाहता है. ये एग्जिस्ट करते हैं, नो डाउट होते हैं, ये भी एक गुड नंबर ही है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. बड़ी मुश्किल से नाइट्रोजन का न्यूक्लियस स्टेबल हो पाता है. देयर मे बी सम अदर रीजन, बट एज पर दिस इट इज नॉट अलाउड. ऑड कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल है, उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, बाइंडिंग एनर्जी से यू विल बोरो मोर एनर्जी टू हैव दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट. आइडियली क्या होना चाहिए? जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या एक्स्ट्रा प्रोटॉन आपका जो दोनों नाइट्रोजन में आपके ऑड है, उनमें से उठा करके दूसरे में डाल दो तो पेयर बन जाएगा, दैट विल बिकम स्टेबल. तो ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो पेयरिंग टर्म को
एक बिग रीजन देते हैं कि दैट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, की पेयरिंग इज देयर. एंड वी विल आल्सो डिस्कस द सेपरेशन एनर्जी आल्सो, तो हम ट्यूटोरियल क्लास में डिस्कस करेंगे और उससे हम देखेंगे कि इस पेयरिंग टर्म का कितना इंपॉर्टेंस है. एंड वी विल कैलकुलेट द सेपरेशन. मींस सेपरेशन एनर्जी इज समथिंग लाइक आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन क्या होता है? आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो एटम से, so you need to give energy, and how much energy you are required, that is called ionization energy to remove electron. First electron, second electron, and so on, जिसको first ionization, second ionization, and so on. इसमें भी ऐसे ही होता है. If you remove one nucleon, you have need to give the energy. How much energy that is required to remove a nucleon, that is called nucleon separation energy. If you want to remove two, that is you are removing a pair of nucleon, then how much energy you have to give, and so on. That we will do the calculation in the tutorial class. यहाँ पे नहीं करेंगे उसे. तो as per derivation what happens कि भी pairing term का भी calculation है, but this is not in this undergraduate. So the value is roughly equal to, or it can be said that the pairing term, which is the fifth term, that is equal to plus minus delta p कहते हैं उसको normally pairing term, which is equal to plus minus AP, which is constant of proportionality for that particular pairing term, divided by a to the power of 3/4. ये फॉर्मूला है. यानी पेयरिंग टर्म की एनर्जी भी है तो उसका फॉर्मूला ये. अब ये प्लस माइनस क्यों है? बाकी सारे टर्म जो थे, वॉल्यूम टर्म हमारा प्लस था बाइंडिंग एनर्जी में, सरफेस और कूलम्स, फिर एसिमेट्री, ये सारे टर्म हमने नेगेटिव लिए, बिकॉज यू नीड टू डू फॉर दैट, you need to take energy, and that energy is borrowed from the volume term, so we have subtracted that. But pairing term can give extra energy to the binding energy, and it can also borrow extra energy from the binding energy. So borrow भी कर सकता है, उसको दे भी सकता है. दोनों पॉसिबिलिटी है पेयरिंग टर्म की. अगर पेयर की फॉर्मेशन होती है आपके न्यूक्लियस में, तो दैट एनहांस द बाइंडिंग एनर्जी. और अगर पेयर आपके अनपेयर्ड रह जाते हैं तो उसको स्टेबल रखने के लिए, टू मेक दैट न्यूक्लियस स्टेबल इवन दो दे आर अनपेयर्ड, यू नीड टू बोरो एनर्जी फ्रॉम द वॉल्यूम टर्म. तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है. जिस केस में कुछ केसेस जीरो भी है, वो सारे हम लिख लेते हैं कि किस किस केसेस में क्या है. दिस वन कैन बी प्लस AP डिवाइडेड बाय A 3/4. यानी प्लस कब लोगे कि वो एनहांस कब करेगा? जब आपका फर्स्ट केस होगा, दैट इज इवन इवन. जब भी आपका न्यूक्लियन के नंबर्स इवन इवन में होंगे n और z के लिए, तो you have to add this term to the binding energy, fifth term. Whenever you have odd a value, यानी ये सेकेंड वाले जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, बट है 100 नंबर है, दैट इज इट विल बी 0 फॉर odd a case. And it will take good amount of energy from the volume term if it is odd case. जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, तो वहां पे बाइंडिंग एनर्जी में आपको माइनस करना पड़ेगा. यानी तीनों पॉसिबिलिटी है. नाउ वी विल राइट द फाइनल इक्वेशन which is a liquid drop model only, but with quantum mechanical correction. This pairing is also due to quantum mechanics. ये pairing आपकी classical में कहीं explain नहीं है. This pairing is actually due to the spin and angular momentum. अगर angular momentum भी ले लेते हो, तो angular momentum can have orbital, वो classical से आप उसे relate कर सकते हो, but spin don't have any classical picture. So this is purely a quantum mechanical understanding. जब तक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है तो ये दोनों टर्म का कोई लॉजिक नहीं है. You can fit anything anywhere. So the binding energy now, the actual binding energy formula, which is AVA minus AS. A क्या था? 2/3 minus AC. नेक्स्ट टर्म क्या था? Z minus 1 divided by
A 1/3 था शायद, क्योंकि वो रेडियस का वाला रिलेशन आ रहा था ना, 1/r था ना वो. A asymmetric or symmetric, whatever it is, but SY में लिख रहा हूँ, that is n minus z, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, whole square divided by A. Then you have plus, but you will write plus, minus and 0 delta. तीनों possibility है, where delta is AP divided by A 3/4. Clear? Is it clear? Yes, sir. Now, because we know this quantity from mass defect, ये हम calculate कर सकते हैं. And there is a function, so we can calculate these values also. Or we can fit the data and we can calculate these values. ठीक है, तो ये normally it is calculated, these constants has been calculated already. So this number is 15.5 mega electron volt AB. AS is 16.8 mega electron volt. This is 0.7 mega electron volt, very less value as compared to these two. कूलम इंटरेक्शन का बहुत रोल नहीं है, and this justify कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं they don't depend upon charge. This is also a reason. That is why it is a fractional value है इनके रिस्पेक्ट में. This one is 23 mega electron volt, big number as compared to these three. यानी quantum mechanics बहुत important है न्यूक्लियस के लिए. Then pairing term 34 mega electron volt, that is also very good number. Is it clear till now कि binding energy formula आ कैसे रहा है? सिर्फ पेयरिंग टर्म के डेरिवेशन को छोड़ करके बाकी सारा हमने किया, और ये भी किया था पार्शियली. एक बच्चा जिसने लास्ट टाइम आंसर दिया था वो है क्लास में भी? मैंने उसको बोला था कैलकुलेट करके रखना ट्यूटोरियल क्लास में. आर यू देयर इन दिस क्लास? है या नहीं है? Yes. यस सर. एक्चुअली कैलकुलेट हुआ था या नहीं हुआ था, या सिर्फ बोल दिया था कि सर दोबारा ना पूछें इससे पहले कि बोल देता हूँ हाँ कैलकुलेट हो गया? सही सही बताना आंसर, मुझे डाउट है कि कैलकुलेट हुआ होगा. बताओ, हैव यू रीच टू दिस फॉर्मूला, और तो आपने बोल दिया कि सिर्फ हाँ शायद आ गया? इतना टाइम, मतलब सैटरडे की बात है, इतनी पुरानी बात पूछ नहीं रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया था. यस और नो? नहीं बता रहा है वो. नहीं हुआ था ना कैलकुलेट? सही सही बताना. आपको नहीं बताएगा, चलो कोई नहीं. I have given this question in the tutorial. So next class we will discuss why we are getting z into z minus 1, why we are not getting z square. यही क्वेश्चन था ना कि z स्क्वायर आना चाहिए सर, z माइनस z into z minus क्यों आ रहा है? That we will do in the tutorial class. And rest of the thing I think I have explained you. So this is the binding energy. This is just a binding energy. Still we have not written the semi-empirical mass formula. That is a different thing. It means liquid drop model क्लासिकल वे में सिर्फ इन तीन पैरामीटर्स को निकालता है. क्वांटम मैकेनिकली उसमें करेक्शन हम इन दो पैरामीटर से लेके आते हैं. एंड देन वी अगेन सी बैक की जो डिफरेंस आ रहा था सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कर्व का इन तीनों पैरामीटर से, देयर वाज अ बिग डिफरेंस, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था. डज दैट डिफरेंस इज बीइंग फिल्ड बाय दीस टू टर्म्स और नॉट? तो हम दोबारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व को चेक करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स को भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो क्या बाइंडिंग एनर्जी हमारा एक्चुअली फिट हो रहा है हमारे इस फॉर्मूले से या नहीं हो रहा है. यार अभी भी कोई देयर इज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट.
So that we will try to see. So let me share the file again, that Excel file. Okay, this was the curve. So there was a huge gap when you take only 3 terms. So now we will include the asymmetric. I have already calculated for at least 100 nuclei. Then pairing also I have calculated with minus plus sign. And this is the final data which we have got, which can be called as a semi-empirical mass formula, but this is not semi-empirical mass formula. This is actual. We will write binding energy per A using 5 terms. Using 5 terms, quantum mechanics लिखते हैं, using quantum mechanics 5 terms लिखने से अच्छा quantum mechanics कर देते हैं. Okay. So I will plot all the 4. A के रिस्पेक्ट में प्लॉट करना है. तो एक तो बाइंडिंग एनर्जी जो मास डिफेक्ट से हम निकाल रहे हैं, उसके बाद लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो आपके फर्स्ट 3 टर्म से आ रहा है, फिर आपका फाइनल टर्म विच इज यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल करेक्शन. So see this one. The red one is again, it is liquid drop model for the first 3 term, and see the green one and blue one. Now they are matching in more better way. Match कर रहे हैं दोनों. अब जब asymmetric term, even pairing term contribution है, but कहीं वो ambiguity भी देता है pairing term, क्योंकि कुछ न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल है ऐड करना, maybe sometime it, because we are not doing the complete model of the nucleus, it require further more things. तो हम एक इसीलिए इसको हम empirical formula भी कहते हैं. That is why it is called empirical. It is not exact formula. Can you see these 2 lines, blue and green one? Is it visible to you? Yes, sir. Now they are matching. Sure. अब जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस बहुत ही कम हो गया. You can enlarge this and we can see कि वो बिल्कुल ही मैच हो रहे हैं. हेवी न्यूक्लियर के लिए एटलीस्ट मैच हो रहे हैं. लाइटर में थोड़ा सा आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी आपको दिख रही है, तो गैप है. देयर इज अ बिग गैप बिटवीन दीस 2 डेटा पॉइंट्स. कुछ यहाँ पे भी गैप है. तो देयर इज गैप एट सर्टेन प्लेसेस. तो न्यूक्लियस में अभी और भी मॉडल हैं which we don't include here, that is normally called as collective model. तो collective model का कोई यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमने लिया नहीं है. That is a final you can say theory for the nuclear model कि न्यूक्लियर के अंदर जो आपके न्यूक्लियस होते हैं बिहेव कैसे करते हैं. तो you need to put such and more things. तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट खत्म होता है. So now we will do the semi empirical mass formula. SEMF वो है क्या और उसका यूज क्या है. अगर वो है तो उसको यूज क्या करें, so that we will discuss, and it has a good use, and we will do one problem with for that application of semi empirical mass formula. Okay, तो अभी हम इसको बंद करते हैं. Again I share the word file. एक्सेल पे आप भी ड्रॉ करके ना देख सकते हो. सारे न्यूक्लियस का तो आप नहीं करोगे, ऑब्वियसली आपको पढ़ाना नहीं है, बट यू टेक जस्ट सर्टेन 5-4 इन अ ब्रॉडर वे. आपने एक 10 ले लिया, एक 20 ले लिया, एक 50 ले लिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया.
ए की वैल्यू ये आपने चूज कर ली, फिर उसमें फिट करके देखो कि फॉर्मूले से फिट होकर के यू डू द कैलकुलेशन। एक न्यूक्लियस के तो कर सकते हो कैलकुलेशन, बट यू कैन डू फॉर द मल्टीपल आल्सो, सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ट्राई टू डू दीज थिंग्स, दैट विल हेल्प यू। समझने में भी इजी होता है अगर आप ग्राफिकली देख सकते हो सामने तो। ओके, सो नाउ वी कम टू द SEMF. Okay. So what is this one? You remember the binding energy formula? Binding energy is equal to Z times mass of hydrogen plus N times mass of neutron minus the mass of atom. और जितने भी masses हैं उनको आपने C square से multiply कर दिया है. So I will use that formula only and I will write mass of atom into C square must be equal to Z times mass of hydrogen plus N times mass of neutron, and they will be multiplied with C square and minus the binding energy. यही फॉर्मूला है या नहीं? सारे टर्म्स एनर्जी के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल्स में, व्हाटएवर, यही फॉर्मूला है ना बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी को बस मैंने मास को इधर कर दिया और उसको मैं उधर लेके चला गया। इज इट सो? यस, ओके। So now what we have to do, we have to put the binding energy formula which we have calculated in this equation. तो धीरे धीरे इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। मे बी सिंबल आपको ऐसे दिखे, यहाँ मैं बार बार सी स्क्वायर मिस कर रहा हूँ, सी स्क्वायर इज हियर माइनस AVA फर्स्ट टर्म, ये माइनस है ना तो माइनस AB आएगा, प्लस A सरफेस A2/3 प्लस AC क्या था, Z-1 divided by A, फिर से एसिमेट्रिक हमारा माइनस में था तो यहाँ प्लस में जाएगा। n माइनस जेड को मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी n माइनस जेड that can be written in terms of A and Z. So what is that value? n की वैल्यू क्या है? A minus Z. n की वैल्यू क्या है? A minus Z and there is minus Z. So this is A minus 2Z. So this is A minus 2Z whole square divided by A. अच्छा ये 1/3 है। And last term which can be plus और माइनस, हमने वहां प्लस लिखा था तो यहाँ माइनस लिखे, वो ब्रैकेट में प्लस माइनस और जीरो लिखे, दैट इज AP by 3/4. Clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. So why it is called semi-empirical mass formula? That it is actually, this equation is used to calculate the mass value of the atom. Semi-empirical means it is calculated not in a totality and it is not a derived formula, it is empirical formula. So semi, not in totality, empirical,
मीन्स आफ्टर एक्सपेरिमेंटल स्टडी वी हैव कैलकुलेटेड दिस फॉर्मूला. बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया और मास फॉर्मूला है ये मास निकालने के लिए फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए नहीं है. टीचर्स कई बार इसको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी कहते हैं, बट दिस इज नॉट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला. दिस इज यूजिंग अ बाइंडिंग एनर्जी यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द मास ऑफ द एटम. तो आपके पास एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला आ गया जो कि एग्जैक्टली फुल नहीं है, इन पार्शियल वे, बिकॉज मास ऑफ एटम विल डिपेंड अपॉन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. वो मास ऑफ एटम उस पर भी डिपेंड करे कि आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या एक्साइटेड स्टेट में तो नहीं चले गए, तो मास विल चेंज. अगर आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं ड्यू टू सम रीजन, then that mass can change. So this is a mass. Normally we can call it for the stable isotope. What we can say? We can say for the stable isotope. So this is a mass empirical mass formula. Empirically you are calculating, not exactly. There is no derivation kind of thing. थोड़े थोड़े डेरिवेशन हमने पार्शियल बिट्स एंड पीसेस में किया, उनको एक साथ हमने राइट अप में डाल दिया है. So that is why it is semi empirical mass formula. Okay. So what is the use of this? ये आपने तो लिख दिया, इसका यूज क्या है? लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया. क्या हम इसको यूज भी कर सकते हैं? कैन वी do we have any application for this equation which we have written, this so elaborate equation? So yes, it has application. आपको अगर मास नहीं भी पता है किसी एटम का तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज वन एप्लीकेशन. Another application is that mass of this atom, whatever the atom you have took, X, A, Z, N, you can guess what should be the value of Z and what should be the value of N for a given collection of N and Z. यानी मैंने आपको जब बोला ना कि मुझे एक न्यूक्लियस बनाना है जिसमें Z मेरे 70 हो, तो आप गेस नहीं करोगे. आप ये नहीं बोलोगे चलो हम 80 न्यूट्रॉन डाल देते, नहीं 90 डालते हैं शायद ठीक बन जाएगा, नहीं इतने डालते हैं ठीक बन जाएगा. नो, you will say yes, I can calculate for you that this much number of neutron you are required to make a nucleus whose Z value is 70. You can do that by using this particular formula. Clear? Is it clear what I have said right now? ये clear हुआ कि मैंने क्या कहा अभी? ये नहीं समझ में आया? सर एक बार रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला आ गया कि किसी का मास क्या है, उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला आ गया. The application of this formula is that you can guess or you can predict how many neutrons you are required for a given number of Z and A. अगर मैंने Z और A आपको बता दिया है तो आप उसके लिए, या ये कह सकते हो कि आपको मैंने A भी नहीं बताया या मैंने A बताया Z, मतलब तीनों नंबर आपके पास जो है ना, Z N को भूल जाते हैं फॉर टाइम बिंग, N को भूल जाते हैं, A और Z को ही सिर्फ, क्योंकि पूरा इक्वेशन हमारा A और Z के टर्म्स में. तो what I can say that you can always predict कि for a given Z you can calculate A value. कि अगर आपने Z ये चूज किया है तो उस न्यूक्लियस का मास नंबर ये होगा. मास नंबर होने का मतलब कि आपने N को प्रेडिक्ट कर लिया आइडियली, क्योंकि N और Z इज नॉट डिफरेंट थिंग. अगर आपने A प्रेडिक्ट कर लिया तो आप N को भी बता रहे हो कि A माइनस Z करो तो उतना N हो गया. यानी आपको जब मैं Z मैंने बताया कि मेरे को एक न्यूक्लियस बनाना है जिसका Z वैल्यू 50 है, तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन गेस कि व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए 50 पॉसिबल है Z की वैल्यू. यू कैन कोरिलेट आप, और यू कैन से कि जब भी आप 50 वाला Z 50 जिसमें Z की वैल्यू होगी ना, उसका जो स्टेबल फॉर्मेशन होगा वो इस पर्टिकुलर A के लिए होगा. यानी उसमें A की वैल्यू 110 होनी चाहिए फॉर एग्जांपल.
अगर आपने Z50 रखा है तो ये 110 रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज न्यूक्लियस विल नॉट बी ए स्टेबल न्यूक्लियस. This guesswork or this prediction work you can do using this formula. Clear? Now it is clear. Yes, sir. एक कॉम्बिनेशन तो आप कितने ही बना सकते हो, आप n कुछ रखो, z कुछ रखो, क्या सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं. ये इक्वेशन आपको बताता है कि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. दिस इक्वेशन टेल दिस थिंग. क्लियर? अच्छा, इक्वेशन देख करके मुझे जरा ये बताओ कि जो मास फॉर्मूला है वो फंक्शन ऑफ a और z का है, बाकी तो सब कांस्टेंट है. जो मेन वेरिएबल्स हैं दैट इज a एंड z. एग्री? जो वेरिएबल्स इसमें एक्ट हो रहे हैं वो a और z हो रहे हैं, है ना? यस और नो? Yes, sir. z के टर्म्स में ये इक्वेशन किस तरीके का है? लीनियर है या किस तरीके का इक्वेशन है? z को अगर सिर्फ z को देखो तो z की वैल्यू किस ऑर्डर की इसमें पूरे टर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है? व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर यू हैव फॉर z और फॉर a यू कैन आल्सो से, बट z के लिए पहले बताओ. देखो इक्वेशन सामने आपके, Sir, 2. टू ऑर्डर है, तो टू ऑर्डर वाले कौन से इक्वेशंस होते हैं? जिसपे ऑर्डर 2 होता है, x टू द पावर ऑफ 2, y टू द पावर ऑफ 2, किस तरह के इक्वेशन कहलाते हैं ये? दे आर क्वाड्रेटिक इन नेचर, they are parabola in nature. Yes or no? y equal to some constant x to the power of 2, so that is parabola, quadratic kind of thing. Agree? Yes, sir. और जब भी पैराबोला होता है तो आपके पास एक मिनिमा पॉइंट होता है या एक मैक्सिमा पॉइंट होता है. एक मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा जो उस पर्टिकुलर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है. दिस इज ऑल्सो एग्रीबल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? या कोई Sir. दिक्कत है? Yes. No, ठीक है, तो वो मिनिमा हमें ढूंढना है, एंड दैट मिनिमा इज एक्चुअली द एग्रीमेंट कि आप z और n का क्या सिलेक्शन करोगे. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू दिस फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ a and equate that to 0, you will find z which is equal to z minimum. The minimum possible value of z for a given value of a, और मिनिमम पॉसिबल अगर a से करते हो तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू z. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक गिवन a, मैंने आपको बोला कि a की वैल्यू है 100, फाइंड z मिनिमम. इसमें आप z कितने डाल सकते हो? अगर a मेरा 100 है तो 40 डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो, 30 डाल सकते हो, 45, क्या नंबर है वो? तो यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस कंडीशन यू कैन फाइंड z मिनिमम. सो लेट अस कैलकुलेट. अब ये आपका काम है कि इसको डेरिवेट करो. इक्वेशन ये रहा, आपको डेरिवेट करना है और इक्वल टू 0 पुट करना है. तो आपको क्या करना है, कीपिंग ए कांस्टेंट, ए को अज्यूम करना है कांस्टेंट है और z से डेरिवेट करना है. यानी आपको क्या करना है, मास ऑफ x a z n c स्क्वायर dz ये कैलकुलेट करो, एंड देन वी विल पुट इट दैट इक्वल टू 0 फॉर फिक्स्ड a. पहला टर्म क्या देगा, वन बाय वन करो आराम से. फर्स्ट टर्म ये क्या देगा मुझे, z से मैं कर रहा हूं ना, तो दैट विल गिव मी मास ऑफ हाइड्रोजन
and c square. ये और कुछ देगा? यही देगा ना? ओके अब यहाँ पे n आ रहा है तो n को क्या लिखोगे आप? a माइनस जेड, यानी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट आएगा a m n, a को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, एम एन भी कांस्टेंट है, सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? माइनस जेड एम एन सी स्क्वायर, इट मीन्स माइनस एम एन सी स्क्वायर। एग्री? एग्री और नॉट? एन की वैल्यू मैंने ए माइनस जेड लिख दिया ना, तो यहाँ पे अगर डिटेल में लिखोगे तो दैट विल बी ए एम एन सी स्क्वायर माइनस जेड एम एन सी स्क्वायर। ये कांस्टेंट है थ्रू आउट, इसमें सिर्फ जेड वेरिएबल है, आपको जेड से करना, तो ये 1 हो गया, बाकी आपका एम एन सी स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट टर्म ए भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, दैट विल बी 0। नेक्स्ट टर्म ए एस कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट हो, नेक्स्ट टर्म इज आल्सो 0। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज z स्क्वायर माइनस z डिवाइडेड बाय a1/3 a1/3। तो दोनों को इंडिविजुअली कर लो। तो क्या आएगा? पहले से क्या आएगा? ए सी 1/3 तो साइड हो गया, मतलब कांस्टेंट है, तो 2z ए सी a 1/3। आई एम करेक्ट? माइनस z ए सी a 1/3, तो ए सी a 1/3 यानी ए सी a 1/3। ठीक है यहाँ तक? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us go to the next. Again we have so many numbers, that is a square, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ लिखा था और इसको मैंने यहाँ लिखा था। a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2az इंटू 2 यानी 4 होगा। ठीक है ये? और तीनों में a से Yes, sir. डिवीजन, हाँ तीनों को a से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो a बच गया, यहाँ पे a एज इट इज है, यहाँ पे भी a कैंसिल हो गया। तो अब जरा 1 बाय 1 करते हैं। ए सिमेट्रिक तो टर्म रहेगा ही रहेगा, बाकी मैंने ए भी कैंसिल कर दिया। तो पहला टर्म है ए एसिमेट्रिक, दैट विल गिव मी 0 दिस टर्म। देन देयर इज अ प्लस साइन एंड प्लस 4 बाय ए तो रहेगा ही, एसिमेट्रिक भी रहेगा। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2z यानी 8 एसिमेट्रिक z divided by a. I'm correct? Yes, sir. Then you have minus, which is you don't have a, तो सिर्फ z है, और बच गया एसिमेट्रिक और 4। तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे, z हमारा dz by dz हमारा 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी 4 टाइम्स a एसिमेट्रिक। लास्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि AP प्लस माइनस 0 थे, बट AP और A है तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो दैट वी कैन नेग्लेक्ट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ वी विल राइट इन अ मोर better way, but once we have derivated everything, this we have to put it to 0 because this term is we have to put it to 0. तो इसको हम 0 पुट करेंगे and that time we will call z as z minimum. तो जरा एक बार पहले हम कलेक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या टर्म आए हैं और लिख लेते हैं एक बार साइड में। Let us write mh mass of hydrogen c square minus mass of neutron c square, z वाले पहले लिख लेते हैं, this one and this one, so that is plus 2z
AC by A 1/3 and plus 8A asymmetric Z divided by A. यहाँ पे भी पूरे से A से डिवाइड हो रहा है. Then we will write this, we have written this, we have written this, and now we are left with these two. So that is minus AC divided by A 1/3 minus 4A asymmetric. कहीं कुछ टर्म हम भूले तो नहीं है? And that must be equal to 0. And this whole thing is, when it is we are putting to 0, now the Z will be called as Z minimum. तो हम क्या करते हैं, सारे टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं और Z को हम इधर ही रखते हैं. ठीक है, तो Z को मैंने कॉमन ले लिया. नाउ इट इज Z मिनिमम. ये बचा 2AC A 1/3 प्लस 8 सिमेट्रिक डिवाइडेड बाय A. ठीक है यहाँ तक? Is it Yes, sir. correct? Now we take one by one. तो पहले हम Mn को प्लस लिखते हैं, यानी Mn माइनस MH यानी हाइड्रोजन, और दोनों को हम C स्क्वायर से यहाँ लिख देते हैं. These two will also become plus. So this is 4 नहीं, पहले AC A 1/3 plus 4A symmetric. Okay, so now we need to go further down. What is this number? Because दोनों known number है ना, Mn और MH. Will it be a feasible value? Because हमें ये भी पता है कि ये वैल्यू कितना है. आपको मैंने कांस्टेंट अभी दिया था 34, sorry 34. If I am not wrong, I have written 34 mega electron volt. This is 0.7, but अभी हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं. 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, which is obviously neglect. You can neglect with respect to this one, but अभी हम नहीं करते हैं. बट कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, because it is of no use. This number is 34 mega electron volt. This number is 0.7 and divided by some good number, यानी a हमारा 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, तो उससे भी डिवाइड करो तो this will go means 0.00 something mega electron volt. Some number will be there, so that is can be neglected with respect to this one. What about this? ये वाला नंबर क्या होगा? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा या क्या होगा? ये फ्रैक्शन ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे. रफली दोनों का जो एनर्जी है ना, रेस्ट मास, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं. एक 930, ये प्रोटॉन का 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 938 या समथिंग होता है, या 932 है, कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं है. बिकॉज रियल वैल्यू अगर लेते हो, Mn की वैल्यू क्या है 1.0086 और Mp की वैल्यू है 1, यानी हाइड्रोजन की वैल्यू 1.007825 है, ये 65 है. तो when you do the difference, what you get? 1 यानी 00 पॉइंट इतना AMU है, एटॉमिक मास यूनिट. एक एटॉमिक मास यूनिट आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, तो कितने 1 2 3 यानी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रह गया वैल्यू. इट मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज आल्सो नेग्लिजिबल. इट मींस 4A asymmetric, sorry SYM divided by this number, that is 2. You can take common and you can take, चलो अभी 2 ही कॉमन ले लेते हैं. AC divided by A 1/3 plus A symmetric divided by A. क्लियर? यहाँ तक पहुंच गए? ठीक है. कैसे हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये हमने दोनों को
बिल्कुल फ्रैक्शनल वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन व्हिच इज 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो यू कैन नेग्लेक्ट दैट। क्लियर? नीचे यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करोगे, डिनोमिनेटर में लोअर वैल्यू इज फिजिबल वैल्यू, तो यू कैन नेग्लेक्ट दैट। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से हमने नेग्लेक्ट नहीं किया, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो। वैसे इसके कंपैरिजन में बहुत फर्क नहीं है, बट वी कैन एटलीस्ट ट्रीट दिस एज अ, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। अब हम और आगे मूव करते हैं। व्हाट वी कैन डू, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन डू, सब यू कैन, हाँ बोलो 8 बोलो। सर जो डिनोमिनेटर में एसिमेट्रिक है वहाँ पे 8 भी आएगा शायद। अच्छा हाँ, ये राइट, यस, गुड, 8। ओके, सो व्हाट वी कैन टेक दिस टर्म इन द डिनोमिनेटर, Two इस common टर्म से, value. हाँ बोलो, फिर से बोलो। सर 2 कॉमन ले लिया तो फिर अंदर 4 रहेगा। नहीं अभी, अच्छा यहाँ, ओके ओके, वेरी गुड, जगह जगह पे पॉइंट आउट कर रहे हो। ये 2, हाँ ये मैंने 2 कॉमन भी लिया था ना, मैंने नीचे ए भी लेना था, बट चलो 2 कॉमन लिया तो दिस इज 4, वेरी गुड। ओके, सो नाउ वी डिवाइड दिस टर्म, डिनोमिनेटर में हम लेके आते हैं इस टर्म को, क्योंकि ये कॉमन हमें दिख रहा है तो हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। सो एंड आई विल पुल आउट ए ऑल्सो, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट पुल आउट ए। मैंने डिनोमिनेटर में नीचे से ए पुल आउट किया है, और इस नंबर से मैं थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूँ, तो दिस विल बी AC divided by 4A सिमेट्रिक, और एक टर्म A का भी रह जाएगा। मैंने A पुल आउट किया ना, तो मुझे A 1/3 चाहिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा नीचे, इफ आई पुल आउट A 2/A मैंने पुल आउट किया ना, थ्रू आउट A भी पुल आउट कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ मैं क्या लिखूँ, A की पावर क्या रहेगी, 1/3 से मैंने A निकाल लिया ना, तो -1 किया, तो क्या बचा, -2/3, so this is -2/3। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. चेक कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करो तो 1/3 आ जाएगा, और 4 एसिमेट्रिक नीचे डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, जो पहले से हमारा टर्म पहले से ही था, तो कैंसिल होके 1 हो गए, और हमारा ए हमने पुल आउट कर लिया, तो दिस इज 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। A/2 ऊपर जाकर के A/2 हो गया, और ये 1 प्लस दिस इज AC डिवाइडेड बाय 4A सिमेट्रिक A2/3, ये यहीं के न्यूमरेटर में गया, तो A2/3 हो गया। क्लियर? Is it clear? यस सर। Okay. So A/2 divided by 1 plus this number we can calculate easily. AC is 0.7 divided by 4 into 34. So we can calculate that number. So that number is roughly equal to 0.007826. जो प्रोटॉन का मास है ना, उसके जैसा ही वैल्यू है, वो 25 होता है, 26 है। A2/3. This is the formula. For a given A, you can predict the Z minimum, which will become a stable nucleus. For example, Z minimum will be roughly equal to A/2 for small a, and which is less than equal to A/2 for larger A value. You can check that. अगर A की वैल्यू 20 है रफली, जो नॉर्मली हमारा कैल्शियम है, नो सॉरी 40 है, अगर A की वैल्यू 40 है, तो 40 का 2/3 क्या होगा, रूट अगर निकालो तो, मतलब इट इज पावर ऑफ 2/3,
तो 40 का क्या होगा मेरे ख्याल से, तो उसको स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 16 उसका क्यूब करोगे, फिर उसको 0.007 से मल्टीप्लाई करो 0.078 से, तो इट इज नॉट अ बिग कंट्रीब्यूशन, तो दैट विल बी रफली 1, ये नंबर उतना आएगा नहीं कोई कंट्रीब्यूशन, तो दैट विल बी रफली 1, so that is equal to a by 2. It is, you can say that for a smaller a it is a by 2, for larger a it is less than a by 2. You can check that अगर ये a की वैल्यू 100 हो जाती है या 200 हो जाता है 150 हो जाता है, तो you can check ये नंबर आपका 1 plus something आएगा, 1 plus something means this number has to be less than a by 2. So this derivation means starting from s e m f formula जो आपने सबसे पहले लिखा था, starting from that find the z minimum, that is you have to derivate with respect to z keeping a as constant, that is partial derivation, and one numerical is definitely a question of 10 marks in every paper you have. तो z minimum का निकालना from starting from that equation, यानी वो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला का इक्वेशन याद होना चाहिए, वो आपको डायरेक्टली यूज करना होता है, उसे डिराइव नहीं करना होता है, उसका यूज करके z मिनिमम निकालना, उसके बेसिस पे गिवन क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, फॉर अ गिवन स्टेबल आइसोटोप या जिसमें a सेम होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, इफ a is same आइसोबार, फॉर अ गिवन आइसोबार, आइसोटोप्स कब होते हैं जब z आपका सेम होता है, और जब n सेम होता है तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोन्स, वेरी गुड, यानी तीनों पता है कि यहाँ पे n सेम है तो आइसोटोन कहते हैं, जहाँ पे आप, क्योंकि शेल मॉडल में ये वर्ड आएगा आइसोटोन, तो जहाँ पे आपके a सेम है उसको आइसोबार कहते हैं, जहाँ पे आपका z सेम है उसको आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप मींस सेम एलिमेंटल स्ट्रक्चर, मींस उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है बट उसका मास डिफरेंट होता है, दैट इज आइसोटोप। आइसोबार इज सेम a वैल्यू, masses are different, could be, but close to that particular value. So for a given stable isobar, what is the value of z minimum? वो isobar की वैल्यू a की वैल्यू आपकी गिवन होगी, से 100 होगा या 150 होगा, उसके लिए आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। This is a 10 marks question. Exactly this question comes in this way. ठीक है, तो आज हमने ये कर लिया, अब इसको थोड़ा सा और ग्राफिकल वे में हम इसको एनालाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं कल। तो हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में चेक करेंगे कि हमारा मास कैसे चेंज होता है फॉर अ गिवन आइसोबार, मास की वैल्यू कैसे चेंज होती है z की वैल्यू अगर मैं वेरी करता हूं तो दैट विल बी सी इन द ग्राफ आल्सो। यहाँ तो हमने न्यूमेरिकली देख लिया, बट हम ग्राफ में उसे चेक करेंगे, और उसके बाद हम कल होपफुली वी विल फिनिश ऑफ द फर्मी गैस मॉडल, एंड वंस यू हैव फिनिश ऑफ विद द फर्मी गैस मॉडल देन वी आर लेफ्ट विद द शेल मॉडल। शेल मॉडल हम फ्राइडे को स्टार्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक तक वो भी खत्म हो जाएगा, तो सेकेंड यूनिट आपका नेक्स्ट वीक मंडे तक होपफुली वी विल फिनिश ऑफ सेकेंड यूनिट। समझ रहे हो, फर्स्ट यूनिट आपका खत्म हो चुका है, ध्यान रखना इस चीज का, और उसके बेसिस पे ट्यूटोरियल भी हो चुका है, और अब दूसरे हफ्ते में जा रहे हैं उसमें हमारा सेकेंड यूनिट भी खत्म है। वी आर गोइंग इन अ फास्टर वे। अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो चलें तो हम स्लो चल सकते हैं, बट टॉपिक इज सो मच, यहाँ पे काफी कुछ है, तो उसके सेंस में थोड़ा सा फास्ट हमें चलना ही पड़ेगा। और स्टॉप आप कर सकते हो, आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे उसके हिसाब से स्टॉप होगा। आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, so why I will do the effort। बाकी ट्यूटोरियल में जितना कर सकते हो, अभी भी उस बच्चे ने देखो आंसर नहीं दिया कि z into z minus 1 आया था नहीं आया था, he has not given the answer till now, but that is a question in the next tutorial। I have put the first question, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बच्चे गड़बड़ करेंगे और हो सकता है उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं, तो यू डोंट फाइंड इन दैट वे, तो वी विल डू दैट कैलकुलेशन आल्सो in the next youth class, that how we are getting z into z minus 1। So today I am finishing off, I am stopping the recording, and now
notes